السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی اے سال صوبم ذرائع ابلاغ اس پیپر کا یونٹ نمبر 1 اس کا جو ضمنی یونٹ ہے، ذیلی یونٹ ہے، خبر کی تعریف اور اس کی اقسام۔ تو آج کا یہ پیریڈ شروع کرتے ہیں۔ خبر کی تعریف یعنی خبر کسے کہتے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات ہم جانتے ہیں، مگر مناسب ترین الفاظ میں ان کا اظہار ہمارے لیے ایک بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ مثلا محبت کیا ہے، زندگی کیا ہے، سچ کسے کہتے ہیں، وغیرہ۔ کچھ ایسے ہی اہم اور دلچسپ سوالات ہیں۔ بالکل اسی زمرے کا یہ سوال ہے کہ خبر کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خبر یا اطلاع کس شے کا نام ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو ذرا مزاحمت ہو جاتی ہے۔ بعض اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خبر یعنی نیوز سے 4 سمتوں کا تعلق ہے، یعنی N نارتھ، E ایسٹ، W ویسٹ، S ساؤتھ۔ نیوز میں جو 4 لفظ ہیں NEWS نیوز، اس کی وضاحت اس طرح سے کی گئی ہے کہ N فار نارتھ، E فار ایسٹ، W فار ویسٹ اور S فار ساؤتھ، یعنی چاروں طرف کی اطلاعات کو نیوز یا خبر یا اطلاع کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ یہ انگریزی لفظ نیو NEW نیو سے ماخوذ ہے اور لفظ نیوز نیو کی جمع ہے، یعنی نیو کی جمع نیوز۔ ایسے 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ کو الگ الگ کر کے N فار نارتھ، E فار ایسٹ، W فار ویسٹ اور S فار ساؤتھ، اس طریقے سے ایک عام خبر کی تعریف بولی جاتی ہے۔ انگریزی میں نیوز کی تعریف بتائی جاتی ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہاں کی ساری باتوں کو بتانا خبر ہے، ایسا ایک تصور ہے۔ دوسرا جو ہے انگریزی میں باقاعدہ لفظ ہے نیو اور اس کی جمع ہے نیوز۔ اس طرح سے یہ ایک تعریف بتائی جاتی ہے۔ ایک مقبول امریکی اخبار نویس جان بی بوگارٹ، سٹی ایڈیٹر نیو یارک کے، کافی سال پہلے ایک ہلکی پھلکی مگر معنی خیز تعریف یوں کی تھی۔ یہ بوگارٹ نے جو تعریف کی ہے یہ بڑی دلچسپ، مزاحیہ اور معنی خیز بھی ہے اور یہ بہت مقبول ہے۔ بوگارٹ کہتا ہے، اگر کتا انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں، اگر کتا انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں، البتہ انسان کتے کو کاٹے تو وہ خبر ہے۔ یہ بڑی مقبول تعریف ہے۔ گویا جو بات بھی معمول کے خلاف ہو یعنی غیر معمولی ہو وہ خبر ہے۔ معمولی سی اگر کوئی بات ہے تو پھر اس کو ہم خبر نہیں کہیں گے۔ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو بالکل غیر معمولی ہے، جو لوگوں کو چونکا دے، اپنے طرف راغب کرے، وہ خبر ہے۔ اس طرح کی تعریف بتائی جاتی ہے۔ مختلف محققین اور مصنفین نے متعدد انداز سے خبر کی تعریفیں پیش کی ہیں۔ ایسی سینکڑوں تعریفوں کا محاصل یہی ہے کہ خبر کا دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ اس میں کوئی نئی بات کہی گئی ہو، تفصیل غیر معمولی ہو، جو بات کسی مقام کی کسی کو سننے میں آئے وہ خبر ہے۔ لفظ اخبار خبر کی جمع ہے، یعنی بہت سی خبریں۔ خبر دراصل ایک عربی لفظ ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اردو اور عربی کے وسیلے سے ایک تعریف اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، اس کی وضاحت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ خبر جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اسی سے اخبار بنا ہے، نئے خبروں کا مجموعہ ہے۔ اس طریقے کی بات
बताई जाती है। तकरीबन हर अहम मुसन्निफ ने अपने अपने तौर पर खबर की तारीफ की है। बहुत सारे अदीबों ने अपने अपने तौर पर खबर की तारीफ़ें की हैं। बहुत से माहिरीन ने खबर की तारीफ़ें की हैं। यहाँ पर चंद की तारीफ हम देख रहे हैं। खबर की तसरीह इस उन्वान के तहत। खबर हर वो दुरुस्त इतला या नज़रिया है जिससे क़ारीन की अक्सरियत को दिलचस्पी हो। अभी जो दूसरी तारीफ है, एरी सी हॉकवुड नामी एक माहिर हैं, उन्होंने इस तरह की है कि किसी भी ऐसे अहम वाक़ये की पहली इतला खबर कहलाती है जिससे अखबार पढ़ने वालों को दिलचस्पी हो। किसी भी ऐसे अहम वाक़ये की पहली इतला खबर कहलाती है जिससे अखबार पढ़ने वालों को दिलचस्पी हो। इनमें इसने सबसे पहले खबर देने वालों की अहमियत को वाज़ह करने की कोशिश की है। अभी विलियम नाम का एक माहिर है, उसने ये कहा है कि खबर ऐसी इतला की गैर मुतासिब रिपोर्ट है जिसमें किसी ताज़ा वाक़ये या हादसे का हाल हो और ऐसा हाल शाये करने से अखबार के क़ारीन की दिलचस्पी का सामान मुहैया होता हो। इस तरह की 20 तौज़ीहात में जो आम निकात हैं वो इन बातों पर इसरार करते हैं। अब तो ये हो गए ख़बर की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें। इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो चीज़ गैर मामूली है वो ख़बर है, और जो सबसे पहले दी जाए, सबसे पहले जो बात बताई जाएगी आमतौर पर उसको हम ख़बर कहते हैं। अब इसका जो अगला हिस्सा है वो ख़बर की अक़साम है, किस्में हैं। ख़बर की बहुत सारी किस्में होती हैं, वो क्या हैं वो देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। जो बात भी मामूल के ख़िलाफ़ हो यानी गैर मामूली हो वो ख़बर है। अभी तारीफ़ में हम लोगों ने देखा है इस बारे में। ख़बर अवामी मीरास है, अवाम की जायदाद है ख़बर। इब्तदाई ज़माने का इंसान जो गारों में अपनी ज़िंदगी बसर करता था और अपना मुद्दा बयान करने के लिए इशारों और किनायों का इस्तेमाल करता था, उसे भी नई बातें जानने और दूसरों तक पहुंचाने का शौक़ था। इब्तदाई ज़माने का जो इंसान है उसमें भी ये जस्तजू, ये तड़प मौजूद थी कि वो कुछ जानना चाहता था और लोगों तक उस बात को पहुंचाना चाहता था। ख़बर ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी जमा अखबार है। चूँकि अखबार के कारी मुख्तलिफ़ मिजाज, ख़यालात, मेआर और नज़रियात रखने वाले होते हैं, इसलिए ख़बरें मुख्तलिफ़ नौ मौज़ूआत पर होनी चाहिए और अवाम के ज़ौक़ का ख़याल रखते हुए ख़बरों का इंतख़ाब करना चाहिए। ख़बरों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो झील में दर्ज की गई हैं। इंसान के अंदर के मिजाज अलग अलग हैं, सब इंसान की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। इस लिहाज से उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से ख़बरें भी अलग अलग होना निहायत ज़रूरी है। उसकी वजाहत आगे इस तरह से की गई है ख़बरों के अक़साम के ज़रिए। अभी ख़बरों के अक़साम, नंबर 1 सख्त ख़बर, अंग्रेज़ी में उसको हार्ड न्यूज़ कहते हैं। नंबर 2 मुतवक्का ख़बर, एक्सपेक्टेड न्यूज़ कहेंगे। नंबर 3 गैर मुतवक्का ख़बर, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। नंबर 4 जामिद ख़बर, पैसिव न्यूज़। नंबर 5 मुस्तअद ख़बर, एक्टिव न्यूज़। इस तरह से ख़बर की 5 अक़साम बताई गई है: सख्त ख़बर, मुतवक्का ख़बर, गैर मुतवक्का ख़बर, जामिद ख़बर, मुस्तअद ख़बर। अब हर एक किस्म की वजाहत करते हुए आगे बढ़ेंगे। हार्ड न्यूज़, सख्त ख़बर। सख्त ख़बर बहुत अहम होती है। इसमें हुकूमत का कोई ताज़ा तरीन ऐसा फ़ैसला जिससे तमाम मुल्क के हालात पर गहरा असर पड़ सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा में किसी अहम आलमी मसले पर गुफ्त व शनीद,
पुलिस की जानिब से किसी जराइम पेशा गिरोह की दरियाफ्त, किसी टैक्स में ज़्यादती, तखफीफ जिससे असरी ज़िंदगी मुतासिर हुई हो सकती है, ऐसी तमाम ख़बरों को तफसील के साथ फौरी तौर पर रोशनी डाली जाती है। इसे सख्त खबर कहते हैं। अभी सख्त खबर में क्या है कि आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कोई बहस मुबाहिसा हुआ है मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान आलमी मौज़ूआत पर कोई बहस मुबाहिसा हुआ है, कोई अहम फ़ैसला हुआ है, उसकी ख़बर दी जाए। पुलिस की तरफ से कोई ख़बर दी जाए, आम जराइम पेशा लोगों के ताल्लुक़ से कोई ख़बर दी जाए, और हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात है जिसका असर अवाम के ऊपर पड़ सकता है, तो इन ऐसी जो ख़बरें होती हैं वो सख्त ख़बर के ज़ुमरे में शुमार की जाती हैं। दूसरी ख़बर है मुतवक्का ख़बर। ये दूसरी किस्म है। मुतवक्का ख़बरें ज़्यादा तादाद में मुसलसल मिलती रहती हैं। तमाम मुतवक्का ख़बरें अक्सर व बेशतर पुलिस थानों, अदालतों, तहसीली दफ्तरों, अवामी जलसों, म्युनिसिपल कमेटियों, खेल कूद के मुकाबलों की रिपोर्टों से मिलती हैं। ऐसी ख़बरों को मुतवक्का ख़बर कहते हैं। बड़े अखबारात में ख़बरें, इस किस्म की ख़बरें जूनियर रिपोर्टर इकट्ठा करता है। अब इसकी वजाहत इस तरह से की जाती है कि जहाँ से ख़बर मिलने की तवक्का है, ऐसे बहुत से ज़राए हैं जहाँ से ख़बरें बआसानी मिल सकती हैं। जैसे कि पुलिस स्टेशन से मिल जाती हैं, अदालतों में भी बहुत सारी ख़बरें बनी बनाई मिल जाती हैं, तहसीली दफ्तरों में मिलती हैं, अवाम के अंदर जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं, तकरीबें होती हैं, वहाँ पर फ़ौरन ख़बरें मिल जाती हैं। म्युनिसिपल कमेटियों में भी बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं, उनके फ़ैसले वगैरह हुए, कुछ काम चल रहे हैं वगैरह वगैरह। खेल कूद के मैदान से अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको फ़ौरन बहुत सारी ख़बरें मिलती हैं। ये जहाँ से तवक्का है कि यहाँ ख़बर मिल सकती है, उसको कहेंगे मुतवक्का ख़बर। नामा निगार यहाँ पर पहुँचते हैं, फ़ौरन उनको ख़बर मिल जाती है, वो उसको तहरीर करते हैं और वो अखबार में शाये की जाती है। तीसरी ख़बर की किस्म है गैर मुतवक्का ख़बर, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। गैर मुतवक्का ख़बरों को जमा करने का काम ज़्यादा मेहनत तलब होता है। ये ख़बरें ऐसे वाक़यात, सानहात या हादिसात की तफसीलात होती हैं जिनके बारे में किसी को वहम गुमान में भी नहीं होता। यानी किसी के भी वहम गुमान में ये बात क़तन नहीं होती कि यहाँ हमको ख़बर मिल सकती है। जो यकायक अचानक रूनुमा आते हैं। मसलन गैर मुतवक्का लफ्ज़ से वाज़ह है कि जहाँ से ख़बर मिलने की तवक्का न हो वहाँ की ख़बर मिलना। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? सानहात हैं, सानहा हो गया, अचानक हादसा हो गया, तो कहीं ज़लज़ला आ गया, कहीं कुछ ऐसी जो चीज़ें कि कोई किसी के वहम गुमान में भी वो बात नहीं है और वो हो गया, वहाँ से लेकिन ख़बरें मिलती हैं। उसकी मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 1, जलसे में तकरीर करते वक्त किसी को गोली मार दी गई। अब ये कोई मुतवक्का बात तो थी नहीं, अचानक हो गया, तो वो वहाँ पर ख़बर मिल सकती है। कुदरती तबाही ये बोलकर नहीं आते हैं, जैसे मसलन ज़लज़ले, सैलाब, कहत, तुग़यानी, तूफ़ान, वबा, मुतादी अमराज का फैलाव, पुराने सियासी निज़ाम की जगह नए निज़ाम का निफाज, कत्ल गारतगिरी वगैरह। ये कुछ ऐसे हादसात और वाक़यात हैं कि इसकी तवक्का किसी को नहीं होती और ये हो जाते हैं, तो उस ख़बर को इस ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा। चौथी किस्म है जामिद ख़बर, पैसिव ख़बर। जामिद ख़बरें वो हैं जो आसानी से हासिल होती हैं, बड़ी आसानी से हासिल होने वाली ख़बरें। मसलन वज़ीरों की तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाने वाली तफसीलात, किसी दफ्तर से भेजी गई बनी बनाई ख़बरों का मजमुआ वगैरह। ऐसी ख़बरों में हरकत कम होती है और इसमें कारी की दिलचस्पी भी सरसरी होती है। अब ये जामिद जो ख़बर है, पैसिव ख़बर, इसमें ये बनी बनाई ख़बरें हैं आम तौर पर कि वज़ीरों की तकरीरें बाकायदा की है, तहरीर में मौजूद होती हैं, उसको लेकर उसमें से ख़बर बनाई जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम तौर पर लोग खुद अपनी ख़बर तैयार करके, बना के, छपवा के, फ़ोटोज़ वगैरह के साथ बनी बनाई ख़बरें दे देते हैं।
दफ्तरों में बहुत सारे चीज़ें रेडीमेड खबरें मिल जाती हैं, तो इसको पैसों खबर कहते हैं। इसके लिए नामानिगार को ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आखिरी किस्म है मुस्तैद खबर, एक्टिव न्यूज़। मुस्तैद खबर को मुतहर्रिक या अमली खबर भी कहते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए, इसको मुतहर्रिक खबर भी कहते हैं और अमली खबर भी कहते हैं। दो अलग अलग नाम इसके लिए बाकायदा दिए गए हैं। जो कारी को ज़्यादा मुतासिर करते हैं, ऐसी जो खबरें हैं वो कारी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, क्योंकि उसकी एक वजह है। ये वो खबरें हैं जिनको नामानिगार अपनी मेहनत से दरियाफ्त करता है या तलाश और जुस्तजू से हासिल करके नुमायां तौर पर शाये करता है। ऐसी खबरों को इकट्ठा करने में सरगर्म और मुखलिस सहाफ़ी हिस्सा लेते हैं। अब ये चीज़ है कि कुछ सहाफ़ी मुसलसल किसी मौजू को लेकर, किसी वाक़ये को लेकर, किसी बात को लेकर बाकायदा एक जासूस की तरह तफ्तीश करते रहते हैं, मालूमात इकट्ठा करते हैं, सबूत दलीलें जमा करते हैं और काफ़ी तलाश तहक़ीक़ के बाद में किसी मसले को उजागर करते हैं सबूत और दलाइल की रोशनी में। इस खबर की, इसलिए इसको एक्टिव खबर भी कहते हैं, मुतहर्रिक खबर भी कहते हैं और अमली खबर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नामानिगार बहुत मेहनत करता है। इसमें ऐसे नामानिगार काम करते हैं जो अपनी एक सोच व फ़िक्र रखते हैं और जिसमें मेहनत का जज्बा है, तहक़ीक़ का जज्बा है और जो अपने हरकत व अमल से, मेहनत से, मशक्क़त से किसी मौजू की तलाश व तहक़ीक़ करके कुछ ख़ास हक़ायक़ सबूत और दलाइल की रोशनी में अवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और अवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारा ख़बर की तारीफ़ और ख़बर की अक़साम ये एक टॉपिक मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में किसी और नए मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।